रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के इस तीसरे भाग में आपका पुनः स्वागत है। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग CSR रिपोर्टिंग, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिवेदन। इस अध्याय में हम जिन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे वो है मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिपोर्टिंग इन इंडिया, what a company covered under CSR needs to do, what are CSR activities, and what are CSR reporting requirements. Let us begin with meaning of CSR. Corporate social responsibility is a concept that organizations have an obligation to consider the interest of customers, employees, shareholders, communities, and ecological considerations in all aspects of their operation. This obligation is seen to extend beyond their statutory obligation to comply with legislation. CSR is closely linked with the principles of sustainable development, which argues that enterprises should make decisions based not only on financial factors such as profits or dividends, but also based on the immediate and long term social and environmental consequences of their activities, especially taking into consideration the needs of future generations. It is an integral combination of policies, programs, education, and practice which extend throughout a corporation's operations and into the communities in which they operate. About how companies voluntarily manage the business processes to produce an overall positive impact on society. यानी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व शब्द एक अवधारणा है कि संस्था का ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारियों, समुदाय और पर्यावरण संबंधी विषयों के संचालन से संबंधित पहलुओं के प्रति उत्तरदायी है। यह दायित्व वैधानिक दायित्व की तुलना में अधिक दिखाई देता है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व निरंतर विकास के सिद्धांत से जुड़ा है, जिसमें बताया गया है कि उपक्रमों को अपने निर्णय वित्तीय घटकों जैसे लाभ या लाभांश पर ही आधारित नहीं करने चाहिए, वरन उन्हें तुरंत एवं दीर्घकालीन सामाजिक व पर्यावरणीय क्रियाओं के परिणामों पर निर्भर होना चाहिए। विशेषकर भावी जनता की आवश्यकताओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। यह एक संगठित प्रयास है जो नीतियों, कार्यक्रम, शिक्षा व व्यवहार का एक सम्मिलित प्रयास है जो पूरे निगमीय क्रियाओं व समाज पर लागू होता है। जहां वह कार्य करते हैं, कंपनियां किस प्रकार स्वेच्छा से व्यावसायिक प्रक्रिया का प्रबंध करती है जो समाज पर धनात्मक प्रभाव डालता है। CSR can mean different thing to different people. For an employee, it can mean for wages, no discrimination, acceptable working conditions, etc. For a shareholder, it can mean making responsible and transparent decisions regarding the use of capital. For suppliers, it can mean receiving payment on time. For customers, it can mean delivery on time. For local communities
and authorities, it can mean taking measures to protect the environment from pollution. For non-governmental organizations and pressure groups, it can mean disclosing business practices and performances on issues regarding ranging from energy conservation and global warming to human rights and animal rights, from protection of the rainforests and endangered species to child and forced labor, etc. निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न अर्थों से है। एक कर्मचारी के लिए उचित मजदूरी, कोई भेदभाव नहीं, स्वीकार योग्य कार्यदशाएं आदि। अंशधारी के लिए इसका आशय पूंजी के उपयोग के संबंध में उत्तरदायित्वपूर्ण व पारदर्शक निर्णय। पूर्तिकर्ता के लिए समय पर भुगतान प्राप्त होने से है। ग्राहकों के लिए माल की आपूर्ति समय पर होनी है। स्थानीय समुदाय एवं अधिकारियों के लिए दूषित पर्यावरण से बचाव के उपाय अपनाने से है। गैर लाभकारी संगठनों के लिए एक व्यावसायिक व्यवहार को प्रकट करना तथा ऊर्जा निर्माण शक्ति से विश्व स्तरीय मानव अधिकारों व पशु अधिकारों को प्राप्ति से है, जिसमें वर्षावन एवं बच्चों की जाति एवं जबरन श्रम आदि का संरक्षण आता है। ऐसा दबाव वर्ग संगठनों पर भी लागू होगा। For a company, however, it can simply be seen as responding to the needs and concerns of people who can influence the success of the company and or whom the company can impact through its business activities, processes and products. परंतु कंपनी के लिए यह देखा जा सकता है कि वह जनता की ज़रूरतों पर ध्यान दे जो कि कंपनी की सफलता को प्रभावित कर सकती है और या जिन पर कंपनी अपने व्यावसायिक कार्यों, प्रक्रिया एवं उत्पाद से प्रभाव डाल सकती है। The term corporate citizenship denotes the extent to which business meet the legal, ethical, economical, and voluntary responsibilities placed on them by their stakeholders. Companies can best benefit their stakeholders by fulfilling their economic, legal, ethical, and discretionary responsibilities. The benefit of good corporate citizenship include a stable social, political, legal environment for business as well as enhanced competitive advantage through better corporate reputation and brand image. Number 2, improved employee recruitment, retention and motivation, improved stakeholder retention and a more secure environment in which to operate. निगमीय नागरिकता शब्द से आशय है कि किस सीमा तक व्यापारी कानूनी, नैतिक, आर्थिक एवं स्वैच्छिक दायित्वों को निभाता है जिसे हितधारक ने उन पर सौंपी है। कंपनियां अपने हितधारक को उनकी आर्थिक, कानूनी, नीतिशास्त्र एवं स्वैच्छिक दायित्वों को पूर्ण करने में अच्छा लाभ प्रदान कर सकती है। अच्छे निगमीय नागरिकता के लाभों में सम्मिलित है। नंबर 1, एक सामाजिक, राजनीतिक, कानून, पर्यावरण जो व्यवसाय व साथ ही बढ़े हुए प्रतियोगिता को लाभान्वित करे, जो अच्छे निगमीय चरित्र व ब्रांड यानी छवि के अनुरूप हो। दूसरा, कर्मचारियों की भर्ती, रोक एवं अभिप्रेरणा में वृद्धि सुधारे, हितकारक संबंध एवं अधिक सुरक्षित पर्यावरण जिसमें वह कार्य करते हैं। नीड फॉर CSR,
CSR is pursued by business to balance their economic, environmental, and social objectives while at the same time addressing stakeholder expectations and enhancing shareholders' value. व्यवसाय द्वारा CSR का प्रयोग आर्थिक, पर्यावरण संबंधी और सामाजिक उद्देश्यों में सामंजस्य बनाने के लिए किया जाता है, जबकि साथ साथ हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने और उनके मूल्यों में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। Over the past decade, CSR has risen in global prominence and importance. More companies than ever before are engaged in serious efforts to define and integrate CSR into all aspects of their business, with their experience being strengthened by a growing body of evidence that CSR has a positive impact on business, economic performance. New voluntary CSR standards and performance measure tools continue to grow amidst the ongoing debate about whether and how to formalize legal CSR requirements for companies, shareholders, stakeholders, including shareholders, analysts, regulators, activists, labor unions, employees, community organizations, and the new media are asking companies to be accountable not only for their own performance but for the performance of their entire supply chain. This is taking place against the backdrop of a company global economy with continuing economic, social, and environmental imbalance. Corporate governance scandals such as those at WorldCom, Enron, Daewoo, etc., profoundly affected major capital markets worldwide and placed issues such as ethics, accountability, and transparency firmly on the business, regulation, and policy agenda. Additionally, issues such as peace, sustainable developments, security, poverty, alleviation, environmental quality, and human rights are having a profound effect on businesses and the business environment. While CSR does not have a universal definition, many see it as a way of integrating the economic, social, and environmental necessities of business activities. Social issues with which business corporations have been concerned since the 1960s may be divided into three categories. पिछले दशक में CSR की पहचान और महत्व विश्व स्तरीय हो गया है। पहले की तुलना में अब अधिक कंपनियां अपने व्यवसाय के सभी पहलुओं में CSR को परिभाषित और एकीकृत करने का भरसक प्रयत्न कर रही है। इनका बढ़ता हुआ अनुभव इस बात का साक्ष्य है कि CSR का व्यावसायिक आर्थिक निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नए स्वैच्छिक CSR मानकों और क्रियात्मक मापन औजारों ने इस बहस को आगे बढ़ाया है कि किस प्रकार औपचारिक रूप से कानूनों CSR आवश्यकताओं को कंपनी के लिए लागू किया जाए। हितधारक, जिसमें अंशधारक, विश्लेषक,
विनियमात्मक अभिक्रिया, श्रमिक संघ, कर्मकार, सामुदायिक संगठन, समाचार माध्यम इत्यादि सम्मिलित है। कंपनियों से उनके प्रति जवाबदेही न केवल उनके कार्यों के लिए बल्कि उसके पूरे आपूर्ति व्यवस्था के प्रति जवाबदेही के बारे में पूछते हैं। यह जटिल विश्व अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि में हो रहा है। वर्तमान आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय असमान असंतुलन के बीच है। वर्ल्डकॉम, एनरॉन, डेवू इत्यादि जैसे निगमीय शासन विवाद ने विश्व की बाजार व्यवस्था के एक बड़े भाग को प्रभावित किया है और नीतिगत आचार, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे मुद्दों को व्यवसाय नियमित करने की कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया है। साथ ही ऐसे मुद्दों जो शांति, पोषणीय विकास, सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरणीय गुणवत्ता और मानवाधिकार से संबंधित है, ने व्यवसाय और व्यावसायिक पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। यद्यपि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, बहुधा इसे व्यावसायिक क्रियाकलापों के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय प्रभाव एकीकरण के संदर्भ में देखा जाता है। सामाजिक मुद्दों को 1960 से व्यावसायिक संगठनों द्वारा 3 वर्गों में बांटा गया है। A. Social problems external to the corporations that were not caused by any direct business action like poverty, drug abuse, decay of the cities and so on. निगम की बाहरी सामाजिक समस्याएं जो प्रत्यक्ष व्यावसायिक क्रिया जैसे गरीबी, बुरे व्यसन, नगरीय पतन इत्यादि के कारण नहीं हैं। B. The external impact of regular economic activities, for example, pollution caused by production, the quality, safety, reliability of goods and services, deception of marketing practices, the social impact of plant closures and plant location belongs to this category. स्थायी आर्थिक क्रियाकलापों का बाह्य प्रभाव उदाहरण स्वरूप उत्पादन द्वारा कारित प्रदूषण, गुणवत्ता, सुरक्षा, माल और सेवाओं की विश्वसनीयता, बाजारू प्रवंचना, कारखाना बंदी का सामाजिक प्रभाव और इस वर्ग से संबंधित कारखाना अवस्थान। C. Issues within the firm and tied up with regular economic activities like equal employment opportunity, occupational health and safety, the quality of work, life and industrial democracy. निकाय के मुद्दे और उनकी स्थायी आर्थिक गतिविधियों से उनका जुड़ाव, जैसे नियोजन के समान अवसर, उपजीविकीय स्वास्थ्य और सुरक्षा, कार्य की गुणवत्ता और औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना। The need continues with the second and third categories are of increasing importance and are tied up with the regular economic operations of business, improved social performance demands, changes in these operations. द्वितीय एवं तृतीय वर्ग का अधिक महत्व है और वे स्थायी आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ी होती हैं। उन्नत सामाजिक कार्य द्वारा इन कार्यक्रमों में बदलाव किया जाता है। Corporate social responsibility ensures that corporations promote corporate citizenship as part of their culture. Corporate social responsibility is about business transforming their role from merely selling products and services with a view to making profits and increasing their revenue to the development of a society through their abilities of generating capital and investing it for social empowerment. निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्वों, निगमों में
उनकी एक संस्कृति के रूप में निगमीय नागरिकता को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय की भूमिका को बदलने के बारे में है। केवल उत्पादों और सेवाओं को बेचकर लाभ कमाने और अपने राजस्व को बढ़ाने से लेकर पूंजी निर्माण और पूंजी को सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निवेश करने की अपनी क्षमता के माध्यम से समाज का विकास करने तक। Definition: Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of the life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large. This definition was given in Making Good Business Sense by Lord Holme and Richard Watts, the World Business Council for Sustainable Development publication. हम कुछ परिभाषाओं को देखते हैं जिसमें महत्वपूर्ण परिभाषा है, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसायों द्वारा दी गई एक सतत वचनबद्धता है कि उनका व्यवहार आचार संगत और आर्थिक उन्नति में योगदान करेगा, जबकि वे अपने कार्य, जीवन की गुणवत्ता का विकास अपने परिवार के साथ और जहाँ तक हो सके स्थानीय समुदाय और पूर्ण समाज के साथ करेंगे। The second definition is corporate social responsibility is achieving commercial success in ways that honor ethical values and respect people, communities, and the natural environment. This definition was given in Business Social Responsibility, a global non-profit organization. निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व एक वाणिज्य सफलता है जो नीति सम्मत मूल्यों और लोगों के सम्मान, समुदाय और प्राकृतिक पर्यावरण के रास्ते प्राप्त की जाती है। Now we will be proceeding towards next topic, and that is CSR in India. In India, the Companies Act 2013 has introduced the idea of CSR to the forefront. भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 ने भारत में CSR के विचार को बहुत ही प्रमुखता से रखा है। The Ministry of Corporate Affairs, Government of India, notified the Section 135 of the Companies Act 2013 along with Companies Corporate Social Responsibility Policy Rules 2014, hereinafter CSR Rules. भारत सरकार के निगमीय मामलों के मंत्रालय ने धारा 135 को नोटिफाई किया है कंपनीज अधिनियम 2013, जो कंपनीज सामाजिक उत्तरदायित्व पॉलिसी नियम 2014, जिनको हम बाद में CSR नियमों के नाम से जानेंगे, एंड अदर नोटिफिकेशंस, और दूसरे नोटिफिकेशन भी जारी किए गए रिलेटेड देयर टू, इनसे संबंधित, विच मेक्स इट मैंडेटरी, जिन्होंने इसे अनिवार्य बनाया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014 से, फॉर सर्टेन कंपनीज, कुछ कंपनियों के लिए, who fulfill the criteria as mentioned under subsection 1 of section 135 to comply with the provisions relevant to corporate social responsibility. ये धारा 135 के उपधारा 1 में कुछ कंपनियां जो पूर्व में निर्धारित योग्यताओं को धारित करती है, उन्हें निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधानों का पालन करना है। एज पर दी सेड सेक्शन, द कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ
rupees 500 crore or more, or turnover of rupees 1000 crore or more, or net profit of 5 crore or more during any financial year shall be required to constitute a corporate social responsibility committee of the board. ऐसी सभी कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा हो, बिक्री 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, शुद्ध लाभ 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो किसी भी वित्तीय वर्ष में, तो उन्हें एक निगमीय सामाजिक दायित्व समिति का गठन करना पड़ेगा, जिसे बाद में CSR समिति के नाम से जाना जाएगा, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, और यह नियम 1 अप्रैल 2014 से लागू हो गया है। The above provisions require every company having such prescribed net worth or turnover or net profit shall be covered within the ambit of CSR provisions। जो यहाँ पर निर्धारित की गई नेटवर्थ है या बिक्री है या शुद्ध लाभ है, उनमें जो कवर होते हैं उन सब पर अनिवार्य रूप से CSR के प्रावधान लागू होंगे। द सेक्शन हैज़ यूज्ड द वर्ड कंपनीज विच connotes a wider meaning and shall include the foreign companies having branch or projects offices in India। यहाँ पर जो शब्द कंपनी काम में लिया गया है इसका बहुत ही विस्तृत अर्थ है, और इसमें विदेशी कंपनियों को या उन प्रोजेक्ट्स को, उन शाखाओं को जो भारत में स्थापित है, उनको भी इस परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न आता है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ए कंपनी कवर्ड अंडर CSR नीड्स टू डू। एक कंपनी जो CSR के एम्बिट, उसके दायरे में जब आ गई है, कवर हो गई है, तो उसे क्या करना चाहिए। वंस ए कंपनी इज कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ CSR, इट शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द CSR। एक बार जब कंपनी CSR के दायरे में आ जाती है तो उसे CSR में दिए गए प्रावधानों का पालन करना होता है। द कंपनीज कवर्ड अंडर द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 135 शैल बी रिक्वायर्ड टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम की धारा 135 उपधारा 1 में कवर होती है, उसे निम्नलिखित गतिविधियां करनी होगी। नंबर 1, एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 135 subsection 1 itself, the company shall be required to constitute CSR committee। जो धारा 135 उपधारा 1 में बताया गया है कि कंपनी को इन प्रावधानों का पालन करते हुए एक CSR समिति का गठन करना होगा। द CSR कमिटी शैल बी कंप्राइज्ड ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स। इस समिति में 3 या उससे अधिक निदेशकों का होना आवश्यक होगा। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 डायरेक्टर शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और इनमें से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक है। सेकेंड, द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ द CSR कमेटी। जब बोर्ड का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तो उस प्रतिवेदन में यह डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि जो CSR कमेटी समिति का गठन किया गया है उसमें कौन कौन सम्मिलित है। द कंपोजिशन ऑफ द CSR कमेटी। नंबर 3, ऑल सच कंपनीज शैल स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर at least 2% of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial years in pursuance of its corporate social responsibility policy। प्रत्येक ऐसी कंपनी जिन पर CSR के नियम लागू होते हैं उन्हें अपने औसत शुद्ध लाभ जो गत 3 वर्षों में
कंपनी ने कमाए हैं उसका 2% सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में खर्च करना होगा। It has been clarified that the average net profit shall be calculated in accordance with the provisions of Section 198 of the Companies Act 2013। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की जाएगी। Also proviso to the rule provide 3(1) of the CSR rules that the net worth, turnover or net profit of a foreign company of the act shall be computed in accordance with balance sheet and profit and loss account of such company prepared in accordance with the provisions of clause A of subsection 1 of section 381 and section 198 of the Companies Act 2013। इसी तरह से जो विदेशी कंपनियां होती है उनके लाभों का या उनकी नेटवर्थ का या उनके विक्रय का गणना करने का कार्य भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 381 उपधारा 1A और धारा 198 की अनुपालना में की जाएगी। ऐसा CSR रूल्स के प्रावधान नियम 3(1) में बताया गया है। CSR एक्टिविटीज़, कंपनियों को जो 2% अपने शुद्ध लाभों का व्यय करना होगा वो कहाँ कहाँ व्यय कर सकती है, उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ कंपनियाँ चला सकती है, उनकी लिस्ट भी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 7 में दी गई है। वो ये है, नंबर 1, इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, भूखमरी और गरीबी को दूर करने के प्रयासों में। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा देने में। प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन, लैंगिक समानता और वुमेन एम्पावरमेंट यानी नारी शक्ति के सशक्तिकरण में। रिड्यूसिंग चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ, शिशु मृत्यु दर को कम करने में और मातृत्व स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में। कॉम्बैटिंग HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेज, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों की रोकथाम में। एंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण में। एम्प्लॉयमेंट एनहांसिंग वोकेशनल स्किल्स, कौशल विकास से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने में जिससे रोजगार बढ़ सके। सोशल बिजनेस प्रोजेक्ट्स, सामाजिक व्यापार से संबंधित प्रोजेक्ट। Contribution to the Prime Minister's National Relief Fund or any other fund set up by the central government or the state government for social, economic development and relief, and funds for the welfare of the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women। कंपनियां प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में योगदान दे सकती है या किसी ऐसे फंड में जो केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के प्रयासों के लिए और सहायता देने के लिए स्थापित किया गया हो, या ऐसा कोष जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों और नारी शक्ति के लिए, उनके विकास के लिए
स्थापित किया गया हो। सच अदर मैटर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, अन्य किसी भी गतिविधि पर जो कि निर्धारित कर दिया जाए। इस व्याख्यान का अंतिम बिंदु है, द लास्ट पॉइंट टू डिस्कस इन दिस लेक्चर इज CSR रिपोर्टिंग। यानी कंपनियां जो गतिविधियां करेगी उनके बारे में वो किस प्रकार अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। Rule 8 of the CSR rules provides that the companies upon which the CSR rules are applicable on or after 1st April 2014 shall be required to incorporate in its board's report an annual report on CSR containing the following particulars। जो CSR रूल्स है उसमें नियम 8 के तहत सभी कंपनियों को जो CSR रूल्स के दायरे में आती है या 1 अप्रैल 2014 के बाद आ चुकी है, उन्हें अपने निदेशकों के प्रतिवेदन में एक वार्षिक प्रतिवेदन CSR यानी सामाजिक निगमीय दायित्व से संबंधित प्रस्तुत करना होगा, जिसमें सम्मिलित किए जाएंगे ए ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द कंपनीज CSR पॉलिसी इंक्लूडिंग ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स proposed to be undertaken and a reference to the web link to the CSR policy and projects or program। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियां पॉलिसीज को दर्शाते हुए कंपनी द्वारा जो भी प्रोजेक्ट्स या कार्यक्रम प्रस्तावित है उन सबको वेब लिंक के साथ दर्शाते हुए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा। द कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, जो CSR समिति बनाई गई है उसका कंपोजिशन यानी उसमें कौन कौन सम्मिलित है। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, गत 3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ। प्रेस्क्राइब्ड CSR एक्सपेंडिचर, निर्धारित निगमीय सामाजिक दायित्व को निर्वाह करने का व्यय जो उपरोक्त शुद्ध लाभों का 2% होगा। डिटेल्स ऑफ CSR स्पेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष में जो CSR पर खर्च किया गया है उसका विस्तृत विवरण। In case the company has failed to spend 2% of the average net profit of the last 3 financial year, reasons thereof। यदि कंपनी ने गत 3 वर्षों के औसत लाभों का 2% CSR पर खर्च नहीं किया है तो उसके कारणों को बताते हुए एक व्याख्या। A responsibility statement of the CSR committee that the implementation and monitoring of CSR policy is in compliance with CSR objectives and policy of the company। जो CSR समिति बनाई जाएगी वह एक रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए एक स्टेटमेंट जारी करेगी कि कंपनियां या कंपनी जो CSR पॉलिसी यानी CSR नीतियां बना रही है वो CSR के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और कंपनी की नीतियों को पूरा करने के लिए अपना उत्तरदायित्व समझती है। द डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी इन द बोर्ड्स रिपोर्ट एंड ऑन द कंपनीज वेबसाइट इफ एनी शैल बी एज पर एनेक्सर अटैच टू द CSR रूल। CSR रूल के साथ संलग्न किए गए एनेक्सर्स के अनुसार कंपनियों को सभी डिस्क्लोजर्स देने होंगे, प्रदर्शन करने होंगे
उन सभी कंटेंट्स का जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित है और जो इससे संबंधित निदेशकों का प्रतिवेदन है। थैंक यू।